We are dealing with the point of kinds of companies. As you remember, up to the point we have seen some kinds of companies. The very first thing which we have seen is that kinds of company on the basis of a liability. Okay, if you remember, the first point we have seen that there are two types of companies on the basis of a liability. One is a company limited, like a limited company, and another is an unlimited company. Now, company limited is getting divided into the two types. Number one, company limited by shares, and number two, company limited by guarantee. Then next point we have discussed that on the basis of liability के बाद में we have gone through the point on the basis of member also the company get divided into the one person is there, one person company. Then minimum 2 member, maximum 200 member. Then it's a private company. Which cannot issue the prospectus to the public and which cannot invite the public to subscribe for its securities. Then we have seen the next company, that was the public company, which is having minimum 7 member, maximum no limit has been there, which can invite the public for the purpose of purchasing its shares. Then we have discussed on the basis of control, the company get divided into the holding company, subsidiary company, associate company, are the kinds of companies which we have discussed up to the point. And now the next point we are going to see, there is a fourth kind today we are going to start of the kinds of company, and that is on the basis of access to the capital. Okay, now accordingly the two types of companies are getting divided. Okay, one is a listed company and another is an unlisted company. Now see, the company which is listed into the stock exchange, जिस कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिस कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और जिसके शेयर्स बहुत आसानी से आप बेच सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट्स पे एक्सेट्रा, वो कंपनी की जाती है, बोली जाती है लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी होना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसी के शेयर्स हम मार्केट में आसानी से क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं. आप लोगों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा आपने, एनएससी वगैरह, वहां पे अपने कभी सेंसेक्स, ये कंसेप्ट आपने सुनी होगी. तो जो कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हो, उसमें रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, उसे बुलाते हैं दैट्स इट, listed company. As per the definition of 2 sub clause 52, it's a company which has any of the securities listed on the recognized stock exchange. जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, उनके यहाँ पे जिन कंपनीज के नाम लिस्टेड है, हम बुलाते हैं वेरी सिंपल लिस्टेड कंपनी. Whereas the word securities as per Companies Act 2013 has been assigned the same meaning as in a section 2 of the Securities Contract Regulation Act 1956. सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ऐसे बोला है ना, सिक्योरिटीज लिस्टेड है. तो ये जो वर्ड है ना सिक्योरिटीज, इसका मीनिंग कौन सा लो करके बोला है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो मीनिंग दिया है ना, वही मीनिंग लेने को बोला है. अब आप बोलोगे कि इसमें क्या मीनिंग दिया है, नॉर्मली लोगों को क्या लगता है पता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट मतलब ओनली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट. नहीं, देखो कहीं पे भी शेयर्स ऐसे नहीं बोला, कंपनी की सिक्योरिटीज, जगह जगह पे नाम कंपनी के शेयर्स की जगह क्या होता है बोलो, पब्लिक को कंपनी इनवाइट करती है सिक्योरिटीज लेने के लिए, ऐसे नहीं बोला जाता कि शेयर्स लेने के लिए. क्योंकि सिक्योरिटीज का एक पॉइंट, एक पार्ट कौन है, शेयर्स है. फिर सिक्योरिटीज में और क्या आ जाता है बोलो, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी अदर चीजें भी किस में आ जाती है बोलो, सिक्योरिटीज में आ जाती है. वहां पे तो सिक्योरिटीज थोड़ी वाइडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू द शेयर्स. शेयर सिक्योरिटीज का एक छोटा सा हिस्सा है वहां पे. देन देखो नेक्स्ट वन, अनलिस्टेड कंपनी इज द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ अपोजिट टू द, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, सिंपल अनलिस्टेड कंपनी कंसिडर करेंगे. अनलिस्टेड कंपनी मींस अदर देन लिस्टेड कंपनी. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल, बहुत सिंपल 2 पॉइंट्स दिए हुए, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी which is registered into the stock exchange called as a listed, and which is not, it is considered as a unlisted company. That's it. Now next kind of company we are going to deal is a government company. अगला जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो अगला टाइप क्या डिस्कस कर रहे हैं बोलो हम लोग, गवर्नमेंट कंपनी. अगला टाइप क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. देखो गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय. गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी बोलो, जिसमें 51% से नॉट लेस देन, मतलब इसका मतलब उसके ऊपर ही पेड अप शेयर कैपिटल किसका चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया,
या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिला के होल्ड किया है, हाँ. But a government company is a company in which not less than 51% fed-up capital is held by either central government or state government or central or a state government. And the section include a company which is a subsidiary of the government company. वापस देखो, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी हमेशा गवर्नमेंट कंपनी होती है. जैसे पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा पब्लिक कंपनी ही होती है, वैसे गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी हमेशा क्या होगी, बोलो वहां पे गवर्नमेंट कंपनी ही होगी. हाँ, सो जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो चार्ट फॉर्म में बहुत आसानी से उन्होंने दिया हुआ है. ओके, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? सी, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन व्हिच 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट. हाँ, or even partly by one or more state government. Means say for example 20% central government का है, हाँ, then 20% महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, 20-20 हो गया 40, 5% कर्नाटका गवर्नमेंट का है, 45, 5% आंध्रा गवर्नमेंट का है and 1% तमिलनाडु का है. So this is also considered as a government company. Okay, what is important is that at least 51 shares has been held by the government. Either it may be completely central government, completely state government, partly state government, partly central government, or partly central government and partly by one or more state government. ऐसे भी हो सकता है वहाँ पे. हाँ, now the next kind of company we are going to see is a foreign company. Okay, now foreign company मतलब क्या पता आपको? जो रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर है. हाँ, जो रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर है बट जिसका इंडिया में, वर्ड देखो मेरा, प्लेस ऑफ बिजनेस है. जो रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर है बट जिसका इंडिया में क्या है, बोलो, प्लेस ऑफ बिजनेस है. हाँ, that is considered as a foreign company, consider किया जाता है. सिंपल. हाँ, see, section 2 sub clause 42 says it means a company or a body corporate incorporated outside India. Where it is incorporated? It is incorporated outside India. Incorporated, getting the word incorporated, that is registered. Okay, it means any company or a body corporate incorporated outside India which has a place of business in India, जिसका खुद का place of business इंडिया में है, हाँ, by itself or through agent, physically or through electronic mode. मतलब आजकल ईमेल, सॉरी, ई बिजनेस भी चलता है, तो जरूरी नहीं कि फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस ही हो. प्लेस ऑफ बिजनेस होना इम्पोर्टेंट है. फिर वो ऑनलाइन मेथड के थ्रू भी है तो भी उसको इंडिया फॉरेन कंपनी कंसिडर किया जाएगा. हाँ, देखो वापस एक बार बताती हूँ. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. हाँ, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है एंड व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and which conduct any business activity in India in any other manner. या फिर उसकी कोई भी business activity इंडिया में है तो वो क्या कंसिडर की जाएगी, बोलो, it is going to be considered as a foreign company वहाँ पे. हाँ, so इसका मतलब क्या आ गया, देखो कि फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, हाँ, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में है, और जो इंडिया में एनी अदर मोड में बिजनेस कंडक्ट करती है, दैट इज कंसिडर्ड एज, क्या कंसिडर किया हमने उसको, फॉरेन कंपनी. ओके, नाउ सेक्शन 8 कंपनी, जिसे हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी बुलाते हैं. तीनों नाम मेंशन करके रखो. कभी कभी इट्स कॉल्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनी, सब लोग ऐसे उसको कॉमनली बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी, या फिर उसका अलग नाम क्या है, बोलो, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ नाम है, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट. और इवन नाउ इट इज कॉल्ड एज अ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. एसोसिएशन, हाँ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसे भी उसको कंसिडर किया जाता है. हाँ, देखो क्या है, सेक्शन 8 कंपनी डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज व्हिच आर फॉर्म्ड. ये कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, देखो, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऑफ कोर्स ना, नाम में एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होगा उसका. सो सेक्शन 8 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज व्हिच आर फॉर्म्ड. इस पर्पस के लिए फॉर्म हुए, देखो, प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, social welfare, religion, charity, protection of the environment. Getting the objects, क्या क्या object है, promote the charitable object of the commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, या religion, या charity, या फिर environment promotion के लिए. मतलब प्रॉफिट अर्न करना उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है,
उसको जो प्रॉफिट होगा ना कंपनी को, वो प्रॉफिट किस पर्पज के लिए अप्लाई किया जाएगा, दीज पर्पजेस के लिए। प्रॉफिट किस पर्पज के लिए अप्लाई किया जाएगा, for the promotion of art, science, sports, education, research, हाँ, इन सारे जो सोशल वेलफेयर पर्पजेस है, हाँ, चैरिटेबल पर्पजेस है, उसके लिए वो अपना प्रॉफिट क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। हाँ, देखो क्या कहा गया, सच अ कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। इस टाइप की जो कंपनीज होते हैं ना, वो अपना प्रॉफिट किस चीज के लिए प्रमोट करते हैं, देखो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए डिविडेंड मेंबर लेते नहीं है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट था कि इस कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं वो डिविडेंड लेते नहीं है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है, प्रोहिबिटेड ही होता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, देखो प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। एंड विच ऑब्जेक्ट, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, किसी भी नॉट प्रॉफिट पर्पज के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए वो पैसा यूज होता है। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर FICCI, हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII, ये अलग अलग एसोसिएशन चैरिटी पर्पज के लिए क्या करते हैं, वहां पे काम करते हैं। हाँ, अभी देखो ऐसे जो एसोसिएशन होते हैं ना, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, लाइसेंस देता है, परमिशन देता है। हाँ, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द license. Section 8 allows the central government to register such a person or association of person as a company with a limited liability. एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में लाइबिलिटी कैसी रहती है, बोलो लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अभी ना मुझे आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, बताना है। हाँ, आपको पता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली पता होगा ही आप सबको, कि जब भी कंपनी का नाम होता है ना, शायद आपने लिखा होगा, देखो ABC लिमिटेड या ABC प्राइवेट लिमिटेड, कंपनीज के नाम देखे, रिलायंस, हाँ, लिमिटेड, कंपनी के नाम देखे होंगे ना आप लोगों ने कभी कभी लिखे हुए वहां पे। तो जब LTD लिखा है, हाँ, एंड PVT LTD लिखा है, ध्यान में आ रहा है आपको मैं क्या पूछ रही हूँ, जब PVT LTD लिखा है या फिर ओनली LTD लिखा है कंपनी के नाम में, तो इट स्टैंड्स फॉर, पता है आपको, हर कंपनी के नाम में एंड में कंपल्सरी इन दोनों में से एक वर्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा, या तो PVT LTD या फिर ओनली LTD। हाँ, PVT लिमिटेड या लिमिटेड के लिए ओनली लिमिटेड, इसका मतलब पता है, मैम वो प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड होता है ना, होता है। हाँ, सही है, और वो कंपल्सरी होता है ताकि जो देखने वाला है ना उसको देखते ही पता चले कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है। इसके लिए उनके नाम के सामने एंड में कंपल्सरी डालना होता है। कंपनी जब प्रॉपर पूरा नाम लेते हैं ना हम लोग कंपनी का, रजिस्टर्ड कंपनी का, तो आपको एंड में कंपल्सरी या तो प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा या तो लिमिटेड दिखेगा। तो PVT लिमिटेड है, इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, और ओनली लिमिटेड है, इसका मतलब वो कंपनी क्या है, बोलो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कंसिडर की जाएगी। लेकिन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को एग्जम्पशन है, वो लोग ये वर्ड नहीं यूज करते हैं ना तो भी चलता है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को एग्जम्पशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लाइसेंस दे सकता है, हाँ, टू रजिस्टर द कंपनीज विदाउट यूजिंग दिस वर्ड्स, ओके, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। तो इसका मतलब हमें ट्रिक मिल जाती है, क्या ट्रिक मिल जाती है, बोलो वो वर्डिंग नहीं है वहां पे PVT या LTD। हाँ, तो इसका मतलब ये कंपनी शायद कौन सी होगी, बोलो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि उसके नाम के पीछे ये वर्ड्स नहीं डाले तो चलता है, अदरवाइज बाकी सारे कंपनीज को कंपल्शन होता है that they have to put out the trail to their name, हाँ, and that is PVT limited या LTD limited नाम वहां पे होगा। हाँ, देखो रीड आउट करते हैं। Section 8 allows the central government to register such a person or association of person as a company with a limited liability without an addition of the word limited or a private limited to its name by issuing a license on such a condition as deems fit। कुछ conditions डाल के देते हैं और उनको permission देते हैं कि you can register a company without using the word limited or a private limited, okay। The registrar shall on application register such a person or association of person as a company under the section, and then वो registrar उनको नाम रजिस्टर करके देता है, और एक बार वो कंपनी रजिस्टर हो गई, हाँ, on registration company enjoy the same privileges obligation of a limited company। एक बार रजिस्टर हो गई, हाँ, तो क्या हो जाएगा, बोलो उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा लिमिटेड कंपनी का, एंड दे विल स्टार्ट टू वर्क एज अ लिमिटेड कंपनी। हाँ, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया या अगर आपने आपका प्रॉफिट किसी पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, हाँ, जिस कंडीशन पे आपको
एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस मिला हुआ है, हाँ, अगर आप वो कंडीशन ब्रीच कर देते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर वो कंपनी जिस कंडीशंस पे उसको वो लाइसेंस मिला है उस कंडीशन की टर्म ब्रीच कर देती है तो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। लेट्स सी, हाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर revoke the license of a company where the company contravened the requirement of the condition of this section subject to which a license is issued, हाँ, or where the affair of company are conducted fraudulently, violative of the object of the company or prejudicial to the public interest, हाँ, prejudicial, harmful, हाँ, या फिर कंपनी कुछ भी ऐसा करती है जो कंपनी या पब्लिक इंटरेस्ट को हार्मफुल है, on revocation the registrar shall put a limited and private limited against the company's name in the register। जैसे उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ना तो वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं रही ना, तो उसके नाम के पीछे ऐड करना पड़ेगा वापस हमें, या तो लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना पड़ेगा। बट बिफोर सच अ रिवोकेशन central government must give the written notice of the intention to revoke the license and opportunity to heard in the matter। देखो आगे जाके ना फ्यूचर में शायद कभी को मैंने ये बताई हुई कंसेप्ट आपको याद आ जाए। हमारे इंडिया में ना इससे रिलेट कुछ नहीं करता बट आपको एक जनरल नॉलेज दे रही हो, हाँ, इंडिया में लॉ में ना नेचुरल जस्टिस नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है, नेचुरल जस्टिस, हाँ, और नेचुरल जस्टिस के हिसाब से ना जब भी हम किसी इंसान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले रहे हैं, जब भी हम किसी इंसान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले रहे हैं ना तो उसको कंपल्सरी बताना जरूरी है कि आपके अगेंस्ट ऐसे एक्शन ली जाने वाली है, हाँ, उसे हम बोलते हैं कि इसको नोटिस देना जरूरी है। एंड देन उसके बाद में उसकी साइड भी हियर करो ना, उसको भी कुछ ना कुछ कहना होगा उसके ऊपर लगाए हुए आरोपों के बारे में ना, तो देयरफॉर ही मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपनी बाजू रखने का अपॉर्चुनिटी देना बहुत मस्ट है वहां पे। विदाउट दैट हम लोग किसी पे एक्शन नहीं ले सकते। इसके लिए ना हम लोग एक लैटिन मैगजीन भी यूज करते हैं लॉ में, द लैटिन मैगजीन इज नो पर्सन शैल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग अनहर्ड, हाँ, उसको हियर किए बिना उसको पनिश मत करो, उसे लैटिन भाषा में बुलाता है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम करके बुलाता है। बट आपको याद रखने की जरूरत है, जस्ट कीप इन माइंड कि किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना है ना तो उसको नोटिस देना जरूरी है कि आपका ऐसा ऐसा एक्शन लिया जाएगा, एंड साथ ही साथ उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड स्टैंड फॉर अपनी बाजू मानने की उसको अपॉर्चुनिटी देना मस्ट है वहां पे। तो सेम हियर आप कंपनी का एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो तो लेट देम नो that why you are doing this particular thing and let them give an opportunity to explain their side also, huh? Then next one देखो order of the central government, huh? When the license is revoked, there the central government may in the public interest order that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar object to form a single company with such a constitution, properties, powers, rights, interest, authorities and privileges and with such as liabilities, duties and obligation as specified in the order or the company may be wound up, हाँ, देखो जब किसी कंपनी का लाइसेंस क्या हो जाता है पूरा रिवोक ही हो जाता है इस सेक्शन के नीचे, हाँ, और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंपनी को पूरा बंद करने से इसको किसी और कंपनी में अमलगमेट कर दे जो सेम पर्पस के लिए बनी गई है, हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे ऑर्डर कर सकता है कि इस कंपनी को अमलगमेट कर दो किसी और कंपनी में जो सेम पर्पस के लिए बनी गई है, हाँ, या फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो सकता है बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर दैट द कंपनी बी वुंड अप, अब उसका लाइसेंस ही रिवोक हो गया तो वाइंडिंग अप प्रोसीजर के लिए जाओ और कंपनी को वाइंड अप करके लो। दो ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट may ask for amalgamating the company into another company with the same object, with same rights, duties, powers, interest, authority, privilege, etc. or central government may order that the company be wound up, company को क्या कर दो, wind up कर दो। So that is order of the central government. Then next one देखो penalty और punishment in contravention, हाँ, penalty क्या हो सकती है देखो, if company make default in complying with the requirement of this section, ऊपर का पूरा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के प्रोविजन जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए, हाँ, उसमें से किसी भी प्रोविजन का वायलेशन करती है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करती है या ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई नहीं करती है, तो कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन, हाँ, of 10 lakh rupees minimum, minimum 10 lakh rupees and to the maximum 1 crore rupees। कंपनी को पेनल्टी क्या बोलो, minimum 10 lakh, maximum 1 crore rupees, and the director and the every officer of the company in default
shall be punishable with imprisonment for a term not which may extend to the 3 year or a fine varying with the 25,000 rupees to 25 lakh rupees or a both. और कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट और डायरेक्टर्स जो गलत है, जिन्होंने गलती की है, उनको कम से कम 3 साल तक जेल हो सकती है और उनको फाइन 25,000 कम से कम 25 लाख ज्यादा से ज्यादा फाइन बैठ सकता है. एंड वेयर इट इज प्रोवाइडेड दैट द अफेयर ऑफ अ कंपनी आर कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंटली. और अगर ये भी ध्यान में आ जाता है कि इसके साथ ही साथ कंपनी के चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के नाम के नीचे इन्होंने फ्रॉड किया है, तो इनको एक्स्ट्रा पनिशमेंट एप्लीकेबल होती है. कौन सी? सेक्शन 447 के नीचे दी गई पनिशमेंट विच डील विद द फ्रॉड. वो पनिशमेंट आपको 5 मिनट में पता चल जाएगी. हाँ, जस्ट अभी के लिए इतना यहाँ पे ध्यान रखो. ऊपर की पनिशमेंट तो है ही है, कंपनी को फाइन मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़. ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड डायरेक्टर्स जिन्होंने गलती की है उनको फाइन कितना होगा? देखो वहां पे फाइन होगा 25,000 से 25 लाख तक और जेल हो सकती है 3 साल तक, उनको जेल हो सकती है. एंड साथ ही साथ अगर ये ध्यान में आ गया कि कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किए गए, तो फिर ना अपार्ट फ्रॉम द अबव पनिशमेंट सेक्शन 447 के नीचे जो पनिशमेंट है वो भी उनको एप्लीकेबल हो जाएगी. 447 की पनिशमेंट आपको बताती हूँ मैं. हाँ, आगे देखो, प्रोसीड करते हैं हम लोग. वहाँ पे हाँ, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो सबको ना नीचे वाइंड अप किया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है सब कुछ, एवरीथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अबव. हाँ, नंबर 1, Section 8 company is formed for the promotion of charitable object like commerce, art, science, religion, charity, protection of environment, sports, etc. हाँ, नंबर 2, मिनिमम शेयर कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट बाकी सारे कंपनीज को होता है ना, पब्लिक को, प्राइवेट को, वो इसको नहीं है. हाँ, नंबर 2, कंपनी अपना प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज करती है. use the profit for the promotion of the objective for which it is formed. कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती है, does not declare the dividend to the member. हाँ, then operate under the special license from central government. हाँ, then कंपनी को LTD या प्राइवेट LTD वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, need not to use the word LTD or private LTD in its name and adopt a more suitable name like a club, chamber of commerce, ऐसे नाम वो यूज कर सकते हैं. अगर उन्होंने जिस कंडीशन पे लाइसेंस मिला उसमें से किसी भी कंडीशन का वायलेशन किया तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, रिवोक हो सकता है. हाँ, अगर वो कंपनी का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस है. नंबर 1, उसको कन्वर्ट कर दे एंड नाम चेंज कर ले और उसको नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर दे, या उसका वाइंडिंग अप कर दे, या उसको किसी और कंपनी में अमलगमेट कर दे हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट. हाँ, देन नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है देखो वहां पे. हाँ, can call its general meeting by giving a clear 14 days notice instead of 21 days. हाँ, नॉर्मली ना आपको अभी मीटिंग नहीं है. हाँ, बट आगे आप इंटरमीडिएट पे ना सारे मीटिंग्स के टाइप इन डिटेल डिस्कस करोगे. एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग या EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, हाँ, उसको बुलाने के लिए कम से कम 21 डेज की नोटिस रिक्वायर्ड होती है. कम से कम कितने डेज की नोटिस रिक्वायर्ड होती है? 21 डेज की. बट इस बेसिस पे अर्जेंट मीटिंग बुलाई जा सकती है कितने दिन के नोटिस पे? 14 डेज के नोटिस पे इंस्टेड ऑफ द 21 डेज वहां पे. हाँ, देन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो बाकी कंपनीज को ये रूल होता है कि कम से कम डायरेक्टर, समझो पब्लिक कंपनी है ना तो कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी है. तो ये जो सारे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स भी सारे इस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को नहीं होता है. हाँ, देन हमारे जो नॉर्मल कंपनी होते हैं ना उनको ना कंपल्सरी होता है एक कमिटी होना, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी करके या शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी करके. 2013 के एक्ट के हिसाब से ये सारे कमिटीज कंपनीज में होना मस्ट कर दिया है. बट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को इन सारे कंपनीज की भी जरूरत, कमिटीज की जरूरत नहीं है. हाँ, एंड हाँ, इस पे कभी कभी आपको कमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है. हाँ, लेट मी नो योर नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, जो हमने डिस्कस किया हुआ जो भी पॉइंट है अब तक हमने जो डिस्कस किया हुआ मटेरियल है उसके हिसाब से मुझे ये बताओ कि देखो व्हाट आई एम आस्किंग यू, 1A, हाँ, another B, one person is a A and another person is a B and they are having a partnership firm. इस A और B की क्या बोले? पार्टनरशिप फर्म है. हाँ, आराधन में A और B की एक पार्टनरशिप फर्म है. ये पार्टनरशिप फर्म, हाँ, ये पार्टनरशिप फर्म
और सी, ये पार्टनरशिप फर्म और सी मिला के कंपनी फॉर्म करना चाहता है, प्राइवेट कंपनी, कैन दे? मैम फिर से बोलो ना, आपकी आवाज अटक रही। Okay. This A and B has started one partnership firm. Okay. Now इनकी पार्टनरशिप फर्म एक 6 महीने से चल रही है। हाँ, नाउ सी इनके पास आता है, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने मेंबर रिक्वायर्ड है बोलो? कम से कम 2, बराबर। सी इनके पास आता है, इसके पास पार्टनरशिप फर्म के पास, और बोलता है कि सी और ये पार्टनरशिप फर्म मिला के एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं। और प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है मिनिमम मेंबर कितने रिक्वायर्ड है? 2। हाँ, तो क्या ये सी और ये पार्टनरशिप फर्म मिला के कंपनी फॉर्म कर सकते हैं? या फिर व्हाटएवर, ये ऑलरेडी एक कंपनी है, हाँ, और इस कंपनी में ये पार्टनरशिप फर्म मेंबर बनना चाहती है, तो क्या वो बन सकती है? ओके, योगिता has given her answer. सही है नहीं है बताती हूँ मैं आपको। ओके, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। ओके, 2 लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव मुझे आंसर करो। योगिता, मेजॉरिटी आर सेइंग यस। हाँ, तो योगिता कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट इज यस? एंड आई थिंक किसने नो दिया है? नो कशिश ने बोला है। कशिश, कैन यू आंसर व्हाई नो? एंड योगिता, कैन यू आंसर व्हाई यस? योगिता? हाँ मैम, एक पार्टनरशिप फॉर्म वाले कंपनी कर सकते हैं वो। ओके, पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट्स का वेरी फर्स्ट पॉइंट याद है? 2 or more persons। हाँ, मिला के एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन्स वगैरह। हाँ, और वहीं पे हमने एक पॉइंट क्लियर किया था, आपको याद है? इवन अभी अभी जब हमने इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी डिस्कस किया था, याद है आपको? तब मैंने आपको कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस बताया था। और कंपनी और पार्टनरशिप के डिफरेंस में पहला ही पॉइंट यही आता है कि कंपनी को खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कंपनी लीगल पर्सन है, फर्म लीगल पर्सन नहीं है, याद रखो। हाँ, तो पार्टनरशिप फर्म देखो, ये अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी मिला के कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। इन दैट केस 3 पीपल विल बी देयर। या फिर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सी कंपनी में इस पार्टनरशिप फर्म का ए इंडिविजुअल मेंबर बतौर जा सकता है, बी इंडिविजुअल मेंबर बतौर जा सकता है, बट इस सी कंपनी का मेंबर पार्टनरशिप फर्म बन सकती है क्या? तो आंसर इज अ नो, याद रखो। हाँ, नहीं बन सकती। हाँ, क्यों नहीं बन सकती बताओ कशिश, आपने नो बोला है। मैम वो दोनों भी सेपरेट लीगल एंटिटीज है, कौन दोनों? पार्टनरशिप और कंपनी। नहीं है ना कशिश, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म, यही तो हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस पार्टनर्स से है, याद है ना आपको? एक भी पार्टनर की डेथ होती है तो एज ए जनरल रूल फर्म डिसॉल्व हो जाती है। वहां पे एज ए जनरल रूल फर्म डिसॉल्व होती है। तो पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, याद रखो। एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। बी क्लियर विद द पॉइंट। पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं है। फर्म की आइडेंटिटी इन दोनों से। हाँ, इफ वी आर टॉकिंग कि इंडिविजुअली ए कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है एज ए इंडिविजुअल ए पर्सन, यस। इंडिविजुअली बी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, यस, ही कैन एज ए इंडिविजुअल पर्सन ज्वाइन द कंपनी। बट एक फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। एक कंपनी कंपनी की मेंबर बन सकती है, हाँ, बट फर्म जो है वो फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। देखो, फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। बी क्लियर विद द पॉइंट। नाउ इसको एक एक्सेप्शन है, लेकिन इस रूल को एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन है? देखो, अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी है, ये हमारी सेक्शन 8 कंपनी है,
तो पार्टनरशिप फर्म, देखो सेंटेंस, पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको बस अलाउ किया कि ये पार्टनरशिप फर्म एक ही कंपनी की मेंबर बन सकती है, और वो कंपनी कौन से बोलो, सेक्शन 8 कंपनी, that is charitable company, association not for profit. हाँ, partnership firm can be a member of a section 8 company. यही as it is sentence देख के आपको comment वाला question हो सकता है हाँ पेपर में, and you have to answer properly for that one. Okay, कि partnership according to the Indian Partnership Act is not considered to be a legal person. It is not separate legal entity. हाँ, it did not have its separate existence apart from the member. Okay, so therefore a partnership as a general rule cannot become a member in a company. It cannot be a member of the any company, but this rule is subject to one exception, and this exception you will explain. कि as per the provision of section 8 of the Indian Companies Act, a partnership can take a shares of a association not for profit, that is section 8 company, or partnership firm can be a member of a section 8 company. RRN में आपको क्या बताया मैंने, तो नहीं, हाँ पार्टनरशिप फर्म किसी नॉर्मल कंपनी में मेंबर नहीं बन सकती है। हाँ, ओनली वन एक्सेप्शन इज दैट एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में वो मेंबर बन सकती है। वहां पे आया क्या ध्यान में, देखो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कशिश ने नहीं तो बोला है, बट कशिश का आंसर ऐसे आ रहा है कि उनको लग रहा है हाँ, एंड बाकी तो सब लोगों ने हाँ आंसर दिया है। तो जिन्होंने भी मतलब 5-6 लोगों ने आंसर दिया, ऑल हैव गिवन यस आंसर। डिड यू गेट आंसर इज अ नो, एंड व्हाई इट इज नो ये ध्यान में आया कि देखो लॉ में व्हाई बहुत ज्यादा मैटर करता है, याद रखो। इसीलिए मुझे एक ही पॉइंट को आपको उसी चीज को वापस वापस बताना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग समझ में आना जरूरी है। रट्टा मार के आपको वो हाँ ना तो रटवा लूंगी, बट अगर रीजन नहीं पता चलेगा ना तो फिर आप लोग आगे नहीं जा पाओगे। और वो एनालिसिस करना जरूरी है, एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से कनेक्ट करके, दैट एनालिसिस मैटर्स, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये वाला सेंटेंस रीड करते हुए हमें फ्यूजन करना है पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस का एंड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का, दोनों का फ्यूजन करके आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा आंसर को। आया क्या ध्यान में, देखो योगिता। हाँ मैम समझा। एंड खुशी असोपा, अंजलि, हाँ मैम। चलो तो इन ऑल वापस थोड़ा सा रिपीट ही दिया है अगले पेज पे। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इन अ कंक्लूजन इज दैट ध्यान में आ गया। हाँ, ये वापस एक चार्ट टाइप में बना के दिया है। दिस इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। हाँ, देन इसका प्रॉफिट का यूज क्या किया जाता है, बोलो टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। हाँ, देन ये जनरली लिमिटेड कंपनी ही होती है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इनको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। इनको ये स्टेटस कौन ग्रांट करता है, बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट grant them the status. However, central government has delegated the power to grant the license. Status central government देता है, लेकिन लाइसेंस आरओसी देता है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज उनको वो स्टेटस क्या करता है, वहां पे देता है। हाँ, अगर उन्होंने कोई भी कंडीशन ब्रीच कर दी तो उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। Central government can revoke the license if a condition of section 8 are contravened या company is conducting its affairs fraudulently or prejudicial that is harmful to the public interest. हाँ, और अगर उनका लाइसेंस रिवोक हो गया तो उनको जो बेनिफिट मिला था कि लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड के बिना वो रह सकते, वो बेनिफिट उनका निकाल के लिया जाएगा, एंड दैट कंपनी